Today, I'm going to start a new chapter that is from economics. The chapter is quite long. It will take around 4 to 5 sessions to complete this chapter. Why I am saying that this chapter is will take such a long time? Because this is going to be one of the important aspect of your इकोनॉमिक्स अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट द सेकेंड वन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेक्टर्स बट ये वाला जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज मनी एंड क्रेडिट एंड इन every economy you wherever you are whatever you are economy is going to definitely have an impact on your life. You are a businessman, you are a serviceman, you are a professional, whatever you are going to be, it's going to affect you. क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है दिस इज डीलिंग विथ व्हाट इज फाइनेंस, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द मनी इन emergencies when we are taking the loans. तो who is authorized to give the loans? And what happens if the loan is unpaid? Then it also talks about the aspect of rural as well as urban credit. एक आपका है रूरल क्रेडिट तो दूसरा आपका है अर्बन क्रेडिट. तो इट टॉक्स अबाउट बोथ ऑफ देम कि रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट कहाँ से आता है एंड अर्बन एरियाज के अंदर क्रेडिट कहाँ से आता है एंड व्हाई money and credit both are important aspect of our lives. So this is going to be the chapter. Today I'm going to just summarize the chapter properly. That's not like just means today the summary will be done and then from your next class onwards you will be having the reading along with the explanation. But today's class will help you out more. So, starting with the chapter money and credit. Now, the very first comes is what is money and how it is a medium of exchange. पैसा क्या होता है and how did it evolve? कहाँ से evolve हुआ था? तो now let us go somewhat back. कुछ थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग. आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने देखा हो शायद अपने घर के अंदर दैट या कहीं पर भी इन द कॉलोनी और यहाँ पे दैट पीपल गिव देयर ओल्ड क्लोथ्स और उसकी जगह पर नए बर्तन लेकर आते हैं. बर्तन हो गया या फिर प्लास्टिक की बाल्टियां हो गई. दे गेट इट. हैव यू एवर सीन? मैम वो आजकल नहीं होता. अभी भी है. आई हैव सीन इट. इट्स देयर. बट ये है कि yes, over the period it has really reduced, but yes, there are. I have seen it recently. I'm talking about not in this area but yes, in Dilshad Garden I've seen it, that people are giving their old clothes या फिर पुराने जूते वगैरह, and there used to be a man who used to move on cycle
and he would be giving the cup and plates like that. That where you are exchanging two things, where you are exchanging two things, that comes under the word what we call as barter system. That's called as barter system. So now, to start off, in the very very early period, जब बहुत पुराना जमाना था, when मतलब कि when the earth just evolved, when people started settling down, लोग अपना अपना settle हो रहे थे, क्योंकि in the earlier period people used to move from one place to another. They had a nomadic life, but after that period when they started settling down, so they required food to eat. तो इन द वेरी 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 बिगिनिंग उनके पास जो कुछ उनके पास होता था, they would be eating that one, because they did not know what is what, they used to eat it. But later, as civilization improved, people now wanted those things which were not with them. उनके पास जो चीज नहीं थी वो चीज चाहते थे, एंड वहां हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ, what we call as barter system. यहां से आपका स्टार्ट हो गया barter system. Now this barter system में क्या होता था, things were exchanged, like किसी एक के पास से गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, तो they would be exchanging them. But there was a disadvantage of this barter system. This is a CBSE question. There was a disadvantage of this barter system, and that is called as double coincidence of wants, और उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. यानी कि जो चीज मेरे पास है, आई हैव राइस, से आई हैव, लेट अस, आई हैव पेन, आपके पास नोटबुक है, लेकिन मुझे नोटबुक नहीं चाहिए. आई डोंट रिक्वायर नोटबुक, आई रिक्वायर समथिंग एल्स. से मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए. तो अब जो मेरे पास है वो आपको नहीं चाहिए, या जो आपके पास है वो मुझे नहीं चाहिए. यानी कि दिस इज द डिसएडवांटेज, कि दोनों पार्टीज को वही चीज चाहिए होगा जो दूसरे के पास है, और अगर नहीं है तो वी हैव टू गो एंड सर्च कि भाई मेरे पास तो पेन है, हु वांट्स पेन एंड हु कैन गिव मी ज्योमेट्री बॉक्स इन प्लेस ऑफ दैट. That was the disadvantage of what we call as barter system, and this is called as double coincidence of wants. यानी कि दोनों तरफ वही चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. So now people were, they were उनको जो है कंफ्यूज थे what to do, because किसी के पास ग्रेन है, दूसरे के पास वेजिटेबल्स है, they were not having that, और इक्वालिटी भी नहीं आती थी. There came the word what we call as intermediary. यानी कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन दोनों के बीच का हो, जो इन दोनों के बीच का हो. यानी कि जिसके पास गेहूं है और जिसके पास चीनी है, अगर उन दोनों को नहीं चाहिए तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे वो ले, एंड जो चीज उन्हें खरीदनी है वो उससे खरीदे. एंड देयर केम द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल टुडे एज मनी. आज जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मनी, पैसा, वो यहीं आया था. The earlier period was barter system, but double coincidence was the negative, or you can say the disadvantage of barter system. And there evolved an intermediary, inter matlab beech ka, which is called as money. So now
was money the same what we are having today? Is money जो हमारे पास आज है क्या वही था पहले भी? No. No, ma'am. The ancient time and the modern time, it is in the book on the left side, it is given. In the ancient time, we used to have coins, grains, cattle, मतलब पैसे की जगह हमें वो मिल जाता था. पैसे की जगह हमें वो मिल जाता था. Like I had wheat, when I gave it to somebody else, accordingly वो मुझे उसके बदले जो है मे बी कैटल दे देगा, मे बी कॉइन दे देगा. एंड स्लोली स्लोली आपके जो कॉइन्स हैं दे बिकेम मोर प्रोमिनेंट. जो कॉइन्स थे वो आपके prominent हो गए. You may be given a picture and you may be asked to identify, this is there in the book, that they were the olden method of intermediary. Now the coins were of gold, silver, copper. सबसे ज्यादा आपके सिल्वर और कॉपर चलते थे. एंड जिसका जैसा सामान होता था, the person would be given that much of silver or copper coin. Thus money came into picture. Now the next question comes is, money does not have value on its own. मतलब आपके नोटों की या फिर आपके जो कॉइन्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे आप गोल्ड को तोड़कर आप उसका कुछ बनवा सकते हो. आप गेहूं को पीसकर आटा बना सकते हो, लेकिन पैसों को आप कुछ नहीं कर सकते हो. यू कैन ओनली बाय समथिंग. अपने आप से उसका कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है. द वैल्यू तो वो हमने डाली है, द वैल्यू दैट वी हैव गिवन, बट उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है. It cannot be used for anything else. It can be used only for exchange. This is a 3-marker question. This is a 3-marker question. That money does not have any value of its own. You cannot use it for any purpose. It can be only used for exchange. So now, what is the modern money? The modern money हमारे हैं notes and coins. हर कंट्री का, we are talking about all the countries, whether you are living in India or you are living in somewhere else. In every country, the modern currency is notes and coins, जिनको हम currency बोलते हैं, जिनको हम currency बोलते हैं. And the currency of each country differs from one to another. So now the next question comes, why is modern currency accepted as a mode of exchange? Why is modern currency accepted as mode of exchange या medium of exchange? क्यों किया जाता है? Because now all the modern currencies, that is the notes and coins, differing from one country to another, they are authorized by the central bank of their country. It is authorized by the central bank of their country. And the central bank of our country is called as Reserve Bank of India. हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको जो है वैल्यूएट करता है, उसको जो है मोनेटाइज एंड डीमोनेटाइज करता है, उसको मोनेटाइज एंड डीमोनेटाइज करता है. द मीनिंग ऑफ मोनेटाइज इज उसकी वैल्यू रखना, एंड डीमोनेटाइजेस उसकी वैल्यू को वैल्यूलेस कर देना. लाइक 8 December 2016 we had demonetization. So it is the
central bank of any country, and our country central bank is called as Reserve Bank of India. So this is how money evolved. This is how money evolved. Now what, Reserve Bank of India तो मनी को मोनेटाइज कर रहा है. What does it else do? क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि हर कंट्री का जो गवर्नमेंट है, थ्रू देयर बैंक्स मनी को, क्रेडिट को जो है एक फॉर्मल फॉर्म देते हैं. दे गिव इट अ फॉर्मल फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज what else does Reserve Bank of India do? It is the one which monetize, यानी कि issues the currencies. It is the one which oversees. आपके 3 marks का question है ये. This is a 3 marker question. The functions of Reserve Bank of India. It oversees the working of banks. उसके नीचे जितने भी बैंक्स हैं उनके काम को देखना, सुपरवाइज करना उसका काम है. देन ऑल्सो पुटिंग पेनाल्टी, देन इंटरेस्ट रेट्स, फॉर्मुलेट द इंटरेस्ट रेट्स. ये सारा काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है फॉर द बैंक्स, फॉर द बैंक्स. So these are the functions of Reserve Bank of India. Now what, अब हमने कहा सबसे पहले that Reserve Bank of India जो है वो बैंक्स के काम को सुपरवाइज करती है. So now who are banks? Who are banks? And banks जो है, how do they survive? हाउ डू दे सर्वाइव, मतलब बैंक्स कैसे बनते हैं, कैसे सर्वाइव होते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या हैं, बैंक्स क्या क्या करते हैं हमारे लिए. नाउ बैंक्स को हम लोग लेकर आते हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर. वी ब्रिंग देम अंडर फॉर्मल सेक्टर. प्लीज याद रखना, मीन्स दे आर एस्टैब्लिश्ड or they are controlled by the government of India directly or indirectly. क्यों? क्योंकि कुछ आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, लाइक ICICI है, यस बैंक है, दे आर ऑल प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, तो उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट इनडायरेक्ट कंट्रोल है. वेयरएज आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, ये सारे जो हैं दे आर ऑल डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब है तो दोनों के ऊपर, इन पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है. नाउ हाउ डू दे इवॉल्व, ये लोग जो है कैसे सरवाइव करते हैं. सरवाइव मतलब कहां से इनके पास पैसा आता है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे सरवाइव. नाउ बैंक्स क्या करता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट repeated question, and as I have already discussed with you, your questions now may not be a direct one, it will be based on some situation. मतलब आपको मैं समझा रही हूं कि बैंक्स ऐसा करता है, लेकिन सीधा आपसे क्वेश्चन ना पूछकर आपसे जो है कोई मतलब कि कोई एक सिचुएशन दे दे और आपसे ये क्वेश्चन पूछे. नाउ व्हाट हैपेंस इज there are two people. There are two people. On one side there are people जो पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं, एंड दूसरा जो कर्जा लेते हैं. On one side there are people who save their money, and on another side you have the people who take the loans. अब बैंक क्या करता है, it is a mediatory between two of them.
बैंक्स इन दोनों के बीच का बिचौला है, मिडल मैन है. नाउ व्हाट बैंक्स डू इज, जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं अपना, जो डिपॉजिट करते हैं, नाउ बैंक्स इनको रखता है. नाउ द सेविंग्स को जो है हम लोग जो है वी ऑल्सो कॉल एज डिमांड, मतलब क्योंकि हम जब भी हमें पैसा चाहिए हम ऑन डिमांड हम इसको ले सकते हैं. सो वी कैन टेक दिस मनी, तो हम अपना पैसा जो है वी कीप इट इन द बैंक. उससे फायदा क्या होता है? पहला, आपको इंटरेस्ट मिलता है. सेकेंडली, आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है. एंड इट ऑल्सो कल्टिवेट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स, क्योंकि अगर पैसा हाथ में रहेगा तो वो तो खर्चा होता ही रहेगा. सो फॉर द कॉमन पीपल, बैंक्स जो है दे आर बून, उनके लिए तो वो एक वरदान है, क्योंकि उनके पैसों पर वो इंटरेस्ट भी देता है, उनका पैसा सेफ भी रहता है, उनको जो है मतलब उनका जो सेविंग्स का जो एक हैबिट होता है वो भी आ जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज, वी पीपल save our money in the bank. Now those who come to the banks for taking loan, जो लोग लोन लेने आते हैं, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, देन आपका पर्सनल लोन, एनी काइंड ऑफ लोन, नाउ द बैंक्स टेक इंटरेस्ट फ्रॉम देम. इनको तो वो इंटरेस्ट देता है, इनसे वो इंटरेस्ट लेता है. नाउ जो इंटरेस्ट क्रेडिटर्स देते हैं दे आर हाई, जो क्रेडिटर्स देते हैं वो ज्यादा होता है. व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% से 18% के बीच में जाता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लोन, द क्राइटेरिया, द ड्यूरेशन, कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेट है वो डिसाइड होता है. एजुकेशन लोन एंड आपका जो हाउसिंग लोन है दे आर बिट चीप, लेकिन पर्सनल लोन, आपका व्हीकल लोन वगैरह आपके थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वो सब आपके लग्जरी माने जाते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किसको लोन दिया जा रहा है, कितने पीरियड के लिए दिया जा रहा है, एंड द बट इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 8 to 18, 20, 25% अपना जाता है, बट दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन जो लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, उनको आपको जो है 3.5 से लेके 5% के बीच में आपका इंटरेस्ट आता है. दैट्स ऑन सेविंग्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट. यानी कि किसी से 10% लिया और आपको सिर्फ 3% दिया, तो ये जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, मतलब दे हैव टेकन 10% फ्रॉम द पीपल एंड दे आर गिविंग 3% टू अस, 7% का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द वर्किंग ऑफ बैंक्स. यानी कि जो बैंक्स का जो खर्चा होता है, उनके जो अपने खर्चे होते हैं, लाइक बैंक को मेंटेन करना, स्टाफ को सैलरी देना, वो मैम सब वो कौन काटता है? बैंक्स काटते हैं ना. इट इज बैंक्स हु टेक इट. मैम सपोज हम लोग बैंकों में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, या तो मैम उसमें इंटरेस्ट लग के मैम वो बढ़ता भी तो है. दैट इज इंटरेस्ट. वही तो ना, इंटरेस्ट कम लगता है ना. हाँ जी मैम. हाँ, तो इंटरेस्ट कम लगता है ना, इट्स ओनली 3%, वेयर एज व्हेन यू आर टेकिंग द लोन इट इज मोर देन 8, 9, 10, मतलब डिफर करता है. मैक्स यस टू मैम. मैक्स आपका 5% आपका इंटरेस्ट है, नॉट मोर देन दैट. ओके. तो इट डिपेंड्स, मतलब आपका सेविंग्स बैंक है 3.5 है, आपका एफडी है तो वो डिपेंड करता है 4.5, अगर सीनियर सिटीजन है तो आई थिंक 8% कुछ ऐसा मिलता है उनको. बट व्हेन द बैंक इज चार्जिंग लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड इट इज 36%. तो 36% चार्ज करते हैं और देते हैं आपको सिर्फ 5% है, तो जो रेस्ट होता है दैट दैट इज यूज्ड फॉर द बैंक्स वर्किंग. उनकी सैलरी, जो बैंक्स में काम करते हैं उनकी सैलरी, बैंक का मेंटेनेंस, सब कुछ जो है उसके अकॉर्डिंग जाता है. दिस इज वंस अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बोथ्स, दैट हाउ बैंक्स अपने आप को सर्वाइव करती है. नाउ
ये तो उन्होंने किया. नाउ बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सम सर्विसेज. सबसे पहला सर्विस तो वो यही है कि हमारे जो सेविंग्स है उनको वो पूल अप करती है. मतलब बाय गिविंग अस इंटरेस्ट दे हेल्प अस टू सेव अवर मनी. घर में रहेगा, या तो वो चोरी हो सकता है या खर्चा हो सकता है, बट इफ यू पुट इट इन द बैंक एज यू सेड इट विल अर्न इंटरेस्ट. तो इट गिव्स अस, सबसे पहले तो हमें पूलिंग सेविंग्स का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सिखाता है. इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन अवर सेविंग्स, जिससे कि हमारा वेल्थ बढ़ जाता है, हमारा पैसा बढ़ जाता है. थर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, जो हम सेविंग्स करते हैं उनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. वी कॉल इट एज डिमांड डिपॉजिट्स. व्हाई? बिकॉज वेन एवर यू नीड योर मनी बैंक, आपको पैसा वापस चाहिए तो यू कैन इमीडिएटली विथड्रॉ. देन बैंक आपको सर्विसेज देता है, आपको अलग अलग तरीके के सेविंग्स देता है. फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके पास एक लमसम अमाउंट है, यू डोंट वांट टू यूज इट फॉर 1 ईयर 2 ईयर, आप उसको डाल दो, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है. आपको हर महीने यू आर गेटिंग सम मनी एज पॉकेट मनी एंड यू वांट टू सेव इट फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे. आप हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट करके एक स्कीम होता है उसमें डाल दो. एवरी मंथ दैट विल आफ्टर 12 मंथ्स, और मतलब डिपेंड्स आप कितने दिन के लिए डाल रहे हो, आपको उतने दिन बाद वो पूरा पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. सो इट गिव्स यू डिफरेंट सर्विसेज. देन इट इज ऑल्सो गिविंग यू द सर्विसेज ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स. आज की डेट पर जितना भी आपका प्लास्टिक कार्ड्स है उसमें हेल्प करता है. दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स आपके जो है. देन डिजिटल पेमेंट्स. देन it also gives us the facility of check. आपके बुक में ये बना हुआ है. एंड वंस दिस पिक्चर केम ऑन, और उसमें पूछा गया था, एक तो नोट का आता है, नोट में किसके सिग्नेचर है. I'll tell you. Now check. What is check? You want to give somebody some money, you want to pay your fees. Now you don't want to pay it through cash. आपने जिस भी एकेडमी को देना है आपने उनका नाम लिख दिया यहाँ पर, एंड जितना आपको पैसा देना है आपने वो यहाँ पर लिख दिया. पे, जो भी आपका नाम है, से एस इंस्टीट्यूट. देन कितना देना है उनको, 5,000. देन यू साइंड हियर. दिस इज चेक. नाउ आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ चेक. Now the next question comes, what is a check? तो check is an instrument. Check is an instrument, या फिर check is a paper which instructs the bank, जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल के इस आदमी के अकाउंट में डाल दो. एक आपका चेक होता है बियरर और दूसरा आपका होता है अकाउंट पेएबल. बियरर चेक मतलब जिसके हाथ में वो चेक है उसको वो पैसा मिलेगा. मान लो आपने मुझे दिया है पे मिसेस रमा राघवन, तो द मनी विल बी गिवन टू मी इन कैश. कभी भी ब्लैंक चेक किसी को मत दे देना, क्योंकि ब्लैंक चेक दे दिया तो जो भी अपना नाम डाल के ले जाएगा. You should give a blank check only to the person whom you know very well. उसको हम बियरर कहते हैं, यानी कि आपने मेरे को डाल दिया तो मैं जाके ले लूंगी. दूसरा होता है अकाउंट पेएबल, यानी कि वो आपके अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाए. और अकाउंट पेएबल में हम ऐसे क्रॉस चेक डालते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर का साइड में डाला, दिस इज पुट. वो मुझे कैश में नहीं मिलेगा, दैट वुड बी ट्रांसफर टू माई बैंक अकाउंट. तो बैंक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देता है चेक का, यानी कि यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक. आप थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, नेफ्ट, IMPS,
मतलब आप डिजिटल पेमेंट्स में EFT ले सकते हो, IMPS ले सकते हो, इसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, चेक दे सकते हो। चेक आपका पोस्ट डेटेड भी हो सकता है, आपको मुझे अगले महीने के लिए देना, आप आज दे देते हो। आई कैन पुट इट व्हेन द टाइम कम्स, जिस डेट को मुझे डालना है, एंड आई कैन टेक द मनी। सो बैंक्स गिव अस सो मेनी सर्विसेज। और ये जो चेक वाला क्वेश्चन है, दिस कम्स इन द पिक्टोरियल ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो कम्स इन अ क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि आपने देखा होगा ऐसे आपके जो है बना होता है, दैट इज नोट। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऊपर क्या है, ये नीचे किसके सिग्नेचर है। तो हमारे इंडिया में जो ऊपर इशुइंग अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जो नीचे सिग्नेचर होता है वो होता है गवर्नर ऑफ RBI। जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, और उसमें लिखा होता है, मतलब वो लिखा हुआ होता है दिस बियरर, मतलब ये जो पैसा है दिस इज 50 रुपीज करके, एंड इट इज रिटन इन ऑल द लैंग्वेज, बिकॉज इंडिया जो है वो हमारे जो 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो हमने पॉलिटिकल उसमें पढ़ा था फेडरलिज्म में, उस लैंग्वेज को यूज करके उसमें लिखा जाता है, एंड महात्मा गांधी जी की फोटो डाली जाती है, और नीचे जो है साइन होते हैं गवर्नर ऑफ RBI के। दिस कैन बी द क्वेश्चन आपकी, मतलब आया हुआ है, दिस कैन बी, मतलब दिस हैज कम। आई थिंक इट इज देयर इन योर बैक ऑल्सो, पीछे भी है क्वेश्चन। सो एक आपका हो गया चेक, और दूसरा आपका हो गया मनी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डू बैंक्स डू। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि बैंक्स हमारे क्या क्या काम करते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव, एंड सेकेंडली हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे डू, हमारे लिए वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स हमारे लिए सबसे पहला सर्व तो दे दिया हमने, जो क्रेडिट के लिए देता है। नाउ द सेकेंड वर्क दैट बैंक्स गिव इज credit facility. In our today's session, we will be completing only this one. Now, what is credit facility? How do banks do? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था that banks take the money from us. हमसे वो लेता है थ्रू सेविंग्स, मतलब हम अपने सेविंग्स को बैंक में डाल देते हैं ना। हमारे जैसे कितने सारे लोग जो हैं वो बैंक्स में पैसों को डालते हैं, तो बैंक के पास काफी पैसा होता है। नाउ बैंक क्या करता है, बैंक विल कीप 15% as reserve, एंड 85% जो है इट इज एक्सटेंडेड एज लोन्स और क्रेडिट। मतलब जो भी उनका टोटल एक इनकम है एक साल में, अब जैसे एक महीने में है, उन्हें पता है कि कितने लोगों ने क्रेडिट में सॉरी सेविंग्स में डाल रखा है। सेविंग्स में तो कभी भी लोग लेकर जा सकते हैं, whereas there are people who might have invested in the in the FD, in the RD, तो they have the money। तो बैंक क्या करती है, उस जो भी उनका टोटल मनी होता है उसका 15% वो रिजर्व रखती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू दे कीप दिस रिजर्व? दिस इज बिकॉज जब हम डिमांड करेंगे, अब मान लो मुझे जाके पैसों की जरूरत है, मैं लूंगी, अगर बैंक ने सारा पैसा जो है क्रेडिट को दे दिया तो मुझे वापस कैसे देगा? So to return back to those people who come and demand their money back, उसके लिए 15% रिजर्व रखती है, and this reserve is checked by RBI। RBI इस कैश रिजर्व रेशियो को चेक करती रहती है। एवरी डे दे हैव टू गिव अ every day at 4 o'clock they have to give the report to RBI। आप में से जो बच्चा बाद में कॉमर्स लेगा उसके 12th स्टैंडर्ड में देयर इज अ क्वेश्चन इन रिलेटेड टू दिस। नाउ 85% जो उनके पास पैसा होता है उसको दे यूज इट फॉर एक्सटेंडिंग लोन टू पीपल। द लोन और द क्रेडिट कैन बी, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी,
it can be a vehicle loan, it can be an education loan, it can be loan to the farmers, it can be for the houses, इट कैन बी फॉर पर्सनल लोन, मैरिज वगैरह है, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, मतलब तो अलग अलग तरीके के जो आपके लोन्स होते हैं दे गिव, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच लोन इज डिफरेंट. अब इस लोन को लेने के लिए द बैंक हैज सम टर्म्स ऑफ क्रेडिट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंडिंग दिस. नाउ आप मान लो आप गए, यू वांट टू गो अब्रॉड, पढ़ना आपको, यू वांट टू टेक सम एजुकेशन लोन, यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, तो आपको बैंक किस टर्म्स पर वो लोन देगा? व्हाट विल बी द टर्म्स दैट द गव. तो सबसे पहले तो द बैंक विल आस्क यू फॉर सम डॉक्यूमेंट्स. आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, विच मे बी योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका, देन आपका इनकम प्रूफ, आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का, आपके जो भी आपके साथ को एप्लीकेंट होगा उनका, मतलब अगर आपके पापा मम्मी कर रहे हैं तो उनका, अगर आपके दादा दादी कर रहे हैं, आपके भाई कर रहा है तो उनका जो है इनकम प्रूफ, देन रेसिडेंशियल प्रूफ, दिस विल बी डिपॉजिटेड. वंस ये सारा आपका स्क्रूटिनाइज हो गया, पूरा उन्होंने देख लिया कि व्हाट इज द, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका रेजिडेंशियल कित कब से रहते हो, व्हाट आर द इनकम, एंड यू आर एलिजिबल, देन द बैंक विल आस्क फॉर collateral. Now what is collateral? If you look into the last 5 years, you will see this question being repeated. What is collateral? Collateral होता है आपका asset. Collateral is the asset जिसके against आपको लोन मिलता है, जिसके against आपको लोन मिलता है. Now for education loan, the collateral may or may not be, but for others we have. Like अगर आपको vehicle loan लेना है तो जो vehicle के जो original कागज होते हैं, जो ओरिजिनल कागज होते हैं वो आपको वहां पर रखवाना पड़ता है. यू गेट द, उसका जो नेक्स्ट कॉपी होता है वो मिल जाता, बट जो ओरिजिनल होता है वो आपको वहां रखवाना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम हाइपोथिकेशन. सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग हाउसिंग लोन तो आपको ओरिजिनल कागज घर के जो है वहां पे रखवाने पड़ते हैं. देन अगेन और कुछ लोन ले रहे हो तो आपको जो है कैटल या जो भी सामान आपके पास है, शेयर्स, इनको हम जो है वी कॉल इट एज कोलेट्रल. व्हाई डू बैंक्स टेक कोलेट्रल? बिकॉज इन केस द creditor is not able to give back the loan, तो वो उस सामान को बेचकर अपना पैसा निकालते हैं, वो उस सामान को बेचकर उस पैसा को निकालते हैं. सो दैट इज व्हाई बैंक्स टेक कोलेट्रल, वो कोलेट्रल लेते हैं. The collateral can be cattle, the collateral can be house, the collateral can be vehicle, it can be shares. तो अलग अलग तरीके के collateral होते हैं. So now the bank will ask collateral, यानी कि the asset against which आपको लोन मिलता है. In another word हम कहते हैं mortgage, गिरवी रखना, अपने सामान को गिरवी रखना. तो आपका वो सामान उनके पास गिरवी होता and they give you the money of that value. So this is one of the important terms of credit. One is your आपके general identity, आपका residential proof, आपका income proof plus आपका collateral. These are the terms of credit they will first of all take. Once your loan is passed, अब बैंक आपको जो है बताएगी the rate of interest, then
द टेन्योर या ड्यूरेशन कितने साल का है, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI, यानी आपको किस रेट पर दिया गया है और कितने दिनों में आपको वापस करना, दैट डिपेंड्स ऑन आपने कितने का अप्लाई किया. इट कैन बी 2 years, 3 years. व्हीकल लोन 2 to 3 years का होता है. हाउसिंग लोन आपके जो है 7 to 15 years तक का लेते हैं लोग, मतलब जितना यंग लेते हैं उतना लंबा चलता रहता है. सो इट डिपेंड्स कि आप कब ले रहे हो, किस पर्पस के लिए ले रहे हो. बाकी आपके पर्सनल लोन्स वगैरह आपके मैक्स टू मैक्स 3 to 4 years के होते हैं. सो द ड्यूरेशन, देन आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आपके जो सारे हैं they are all called as terms of credit. Terms of credit. So as I told you that to take a loan you need all these documents, you need collateral. देन आपको बताता है बैंक कि आपको जो है कितने महीने के लिए किस मतलब की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका मंथली कितना इंस्टॉलमेंट है वो दे देता है. नाउ द लास्ट इन दिस सेक्टर कम्स इज why sometimes banks do not give loan to the poor. अगर बैंक का काम है कि लोन देना है तो why doesn't it give to the poor people? This is because sometimes the poor people don't have collateral, या they don't have the proper proof of their income. अब बैंक्स का तो वो जो इनकम प्रूफ है वो कोलेट्रल है, वही तो उनके लिए स्ट्रेंथ है. अगर वो इंसान कल को पैसा वापस नहीं करता, then it is the banks can at least sell out those things and they can get the money. लेकिन अगर आपके पास कोलेट्रल भी नहीं है, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, तो कौन से मतलब कि on what basis the banks will give? So that is why sometimes bank do not give loans to the poor. In the absence of collateral, in the absence of proper documentation, उनको नहीं मिलता है. और इसीलिए हमारा next sector start हो जाता है, that is informal sector, which we will be doing in the next session. So this is what we call as money and credit, and the entire business system, the entire economics of a country depends on this money and credit only. पूरी मतलब कि अगर हम कहीं का भी बोलेंगे ना तो पूरे कंट्री का किसी का भी होता है तो ये मनी और क्रेडिट यहाँ से पैसा आता है. दिस इज द वन हाउ इट सर्कुलेट्स, एंड वंस इट इज सर्कुलेटेड, ये सर्कुलेट होता है, क्रेडिटर्स के पास जाता है, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है. ये बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, इन पैसों को यूज करते हैं, दे प्रोड्यूस, दे गेट प्रॉफिट, और बैंक को पैसा वापस करते हैं. और इस तरीके से दिस goes on. In every country we have two credit way, मतलब हम दो तरीके से क्रेडिट ले सकते हैं. One is what we have first learned, that is banks. Second आपके cooperative sectors, again it is called as formal. Right? Now you can take an off. Bye.